मैं तो बच्चे फिर रहा था। হঠাৎ চলতি প্রেস কনফারেন্সে রাহুল গান্ধী দেশের বিরোধী দল নেতার কি এমন হলো যে তিনি ছুটে গিয়ে একজনকে জড়িয়ে ধরলেন এবং সেটা স্টেজের ওপরে। তার কারণ তিনি দেখাতে চাইছিলেন যে আজকের দেশে বিদেশ নীতির মানেটা ঠিক কি। বিদেশ নীতি বা ফরেন পলিসির মানে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরা, যেটা বিভিন্ন সময় আমরা দেশের প্রধানমন্ত্রীকে করতে দেখি, সেটাকেই রাহুল গান্ধী কোথাও গিয়ে একদম মক করেছেন একটা প্রেস কনফারেন্সের মধ্যে। এবং অবশ্যই তিনি সম্পূর্ণ অ্যাকশনটা দেখিয়ে দিয়েছেন যে কিভাবে সম্পূর্ণ বিষয়টা হয়, অর্থাৎ জড়িয়ে ধরেন। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती हैं, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। मैं तो बच्चे फिर रहा था। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। আপনারা দেখলেন সেই মুহূর্তের ছবি এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রেস কনফারেন্স করেছেন। সম্পূর্ণ মনসুন সেশন শেষ হয়ে গিয়েছে, তার পরবর্তীতে সেদিন সন্ধ্যেবেলায় অর্থাৎ মানুষের মনে থাকতে থাকতেই তিনি একদম লোহা গরম থাকতে থাকতে হাতুড়ি মেরে দেওয়ার মতন বিষয়টা হয়েছে। মনসুন সেশন জুড়ে সম্পূর্ণ রাহুল গান্ধী বিভিন্ন প্রেস কনফারেন্স করেছেন, বিভিন্ন তার অভিযোগ সামনে এনেছেন এবং এমনকি আমরা দেখতে পেয়েছি যে যারা ভিক্টিমাইজড হয়েছিল 20 জুলাই যে ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনে যারা ভিক্টিমাইজড হয়েছিল সেই সব স্টুডেন্টদের নিয়েও একদম প্রেস কনফারেন্স করেছেন তিনি, একা প্রেস কনফারেন্স করেছেন তিনি। আমরা দেখতে পেয়েছি শুধু মহিলাদের নিয়ে প্রেস কনফারেন্স করেছেন তিনি। সমস্তটা হয়েছে, কিন্তু তার পরবর্তীতেও যে প্রেস কনফারেন্সটা করলেন তিনি একটা হলের মধ্যে রীতিমতন, সেটার কিন্তু একটা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। এবং সেই জায়গাটাতেই একদম সরাসরি যে কথাগুলো বললেন, অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কিছু কথা বললেন। তার মধ্যে তিনি যেটা বললেন যে এই সরকারের পতন শুরু হয়ে গিয়েছে এবং এই সরকার আর বেশি দিন নেই এবং আমরা ততদিন পর্যন্ত তাদেরকে ঘুমোতে দেব না, নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহকে, যতদিন না তারা ইস্তফা দিচ্ছেন। সরাসরি একদম কটাক্ষ নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহের ওপর, তাদের কাজকে নিয়ে এবং তাদের এই মনসুন সেশনে না আসা সেটাকে নিয়ে। সম্পূর্ণটা আপনারা দেখুন এবং অবশ্যই বিচার করুন, আপনাদের মতামত কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না টক টু বাংলা। मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, गणितपाल। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है गया, और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा ये। उसका एक तरीका है मोहब्बत की दुकान। हैव यू एवर वंडर्ड, आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने। ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा।
रियलिटी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो रचनात्मक कांग्रेस का मतलब क्या है? आपको एक्सप्रेस करना है। आपने एलजीबीटी की बात की, आपने आदिवासियों की बात की। एक्सप्रेशन को दबाना नहीं है, कोई भी हो। और मैं आपको बात को और भी आगे ले जाता हूं। जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन है। हमारा ये नहीं है, हम कह रहे हैं कि भैया सब लोगों का एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो आपके दिल में, आप खुल के बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी और को नहीं दबा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भैया देखो आप सिख हो तो आप गुरु नानक की बात नहीं कर सकते, आप मुसलमान हो तो आप अल्लाह की बात नहीं कर सकते, आप जैन हो तो आप महावीर जी की बात नहीं कर सकते, आप हिंदू हो तो आप शिव की बात नहीं कर सकते। नहीं, जिसको जो बात करनी है, जो भी जिसके भी दिल में है, उसको बोलना चाहिए। उसके बाद देखेंगे। बात अच्छी नहीं लगी तो फिर कहेंगे उससे कि भैया देखो ये आपने जो बोला है ना, ये इसने मूड खराब कर दिया, इसको आप दूसरे तरीके से, पहले बोलेंगे इसको आप दूसरे तरीके से बोलिए, प्यार से बोलिए। तो जब देश में एक्सप्रेशन बाहर निकलेगा तो देश की ऊर्जा, देश की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी दुनिया को दिखाई देगी। ये क्या कर रहे हैं? ये देश पर एक्सप्रेशन को मार रहे हैं। और आप बिलीव नहीं कर सकते इनके साथ हुआ क्या। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हुआ क्या इनके साथ। ये गए, आई एक्सप्लेन। ये गए, संदीप आना जरा, ये इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती हैं, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। मैं तो बच्चे फिर रहा था। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर दोस्ती नहीं करता है, उसको दोस्ती से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको अपने देश की रक्षा करने का काम करता है। अब इनके दिमाग में पता नहीं कहां से घुस गया कि ये मेरे दोस्त हैं। वो गले लगने लग गए। थोड़ी देर बाद हो जाता है कि भैया ये मेरा दोस्त है, गले लग लिए 3 बार, दोस्त होगा। वो पीछे पकड़ लिया उन्होंने। हाँ, वो 2 मिनट में देखो, ये सोच रहे कि मेरे बड़े फ्रेंड हैं, है ना, ये सोचे मेरे बड़े फ्रेंड हैं, ये मैं अपने आप को इनका फ्रेंड नहीं मानता हूं, तो ये आ रहे गले मिलने, मैं आ रहा हूं गला पकड़ने। और मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी को 2 मिनट में लपेट लिया। अब इमेजिन हुआ क्या, एक साइड ईरान में युद्ध होता है, हिंदुस्तान के लिए अगर हिंदुस्तान अपनी स्ट्रेंथ को समझता और अगर हिंदुस्तान का नेता इंदिरा गांधी जी जैसा होता तो हिंदुस्तान के लिए दुनिया में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई। कौन सी कि भैया ईरान हमारा पुराना दोस्त, अमेरिका हमारा दोस्त, रशिया हमारा दोस्त, चलो भैया हम रेलेवेंट बन जाते हैं, इनकी दोस्ती बनाते हैं। हुआ क्या?
नहीं हुआ क्या, पाकिस्तान ने हमें जगह उठा के ले गया। जो मीडिएटर पाकिस्तान बन गया और हिंदुस्तान, मोदी जी देखते रह गए। ये हुआ क्या भाई, ये कैसे हुआ? अब क्या हुआ? अभी ये मीडिया वाले आपको बता नहीं रहे। मुझे मालूम है आजकल भैया, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। पूरा रिवोल्ट चल रहा है अंदर। हुआ क्या? हमारी पेट्रोलिंग एरिया में चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया कि भैया हाँ ठीक है, वो सब बात ठीक है, ये आपकी जमीन है, मगर आप यहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई है। वो क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन अभी चल रहा है। सारे मीडिया के एडिटर्स को कॉल कर रहे हैं कि भैया ये बात आप अपने अखबारों में मत डालो, छुपाओ। सीधा बिना सोचे समझे देश का नुकसान कर रहे हैं। मैंने देखा, नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी। प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच चाइना ने नहीं लिया। उसके बाद आर्मी कहती है कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए। आप सोचिए, चाइना को मैसेज किया गया। चाइना के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई। फैक्ट बोल रहा हूं आपको। आर्मी कह रही है कि भैया हमारी जमीन गई, चाइना का नेगोशिएटर कह क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा तो प्रधानमंत्री कह रहा नहीं गई है, जाके उनसे बात करो। तो इन्होंने इंटरनली देश को खत्म कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी उड़ा दी है, और सारा का सारा काम अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको फाइनेंस करने के लिए, अदानी जी का पैसा लेने के लिए ये उन्होंने किया है।